اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاؤں کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں۔ اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ کہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی قرآن، نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے سرعام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، عرب اور عجم کی اس تفرقے کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکے آ پہنچے۔ فوج یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کے خط جب امام حسین تک پہنچے اور ان خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ اے نواسہ رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکے میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا۔ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے حر، کیا تو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام رواں ہوئے
तारीख ने लिखा, एक जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा रुक गया। एक आंधी उठी। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई हुसैन, इस जमीन से मुझे तेरे खून की बू आ रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ मेरी बहन, ये वही जमीन है जहाँ मेरा खून नाहक बहेगा और यहाँ से तुमको कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ ले जाया जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास खैमे नस्ब करो, हम यहीं ठहरेंगे। उस जमीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खरीद किया और उसका नाम जागीर अली अकबर रखा। आज भी जमीन करबला, जहाँ शुहदाए करबला आराम फरमा रहे हैं, जागीर अली अकबर के नाम से याद की जाती है। फौज यजीद को जब ये मालूम हुआ कि हमारा सालार हुर रसूल के नवासे के साथ नरमी से पेश आ रहा है, उसने फौज के सालार को तब्दील किया। उमर बिन साद और शिमर हजारों की फौज के साथ करबला आ पहुँचे और आले रसूल पे सख्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती रही। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के खयाम नहरे फरात के किनारे पे थे। फौज यजीद ने सोचा, अगर हुसैन पानी के साथ है, इसको फतेह करना नामुमकिन है। अगर हुसैन के खैमे नहर से हट जाएं, तो हम इनको पानी के लिए तरसाएंगे और फिर प्यासा रख के इनको शहीद करेंगे। फौज यजीद खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ी और कहने लगी कि वक्त के बादशाह यजीद का हुक्म है कि अपनी खैमे नहर से हटाओ। हजरत गाजी अब्बास ने जब ये सुना, अपनी तलवार को न्याम से निकाला और कहने लगे, किसमें है हिम्मत कि रसूल अल्लाह के खैमे नहर से हटाए। ऐ लोगों, पानी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने इस पानी को भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके खल्क किया। फौज यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। इमाम हुसैन गाजी अब्बास के कंधे पे हाथ रख के फरमाने लगे, अब्बास अपनी तलवार न्याम में रख। मैं नहीं चाहता कि दुनिया ये कहे कि रसूल अल्लाह का खानदान पानी के लिए लड़ा। अब्बास, हम यहाँ जंग जीतने नहीं बल्कि अपने लहू से इस्लाम की सदाकत को बयान करने आए हैं। अपने हाथों से जैसे तुमने यहाँ खैमे लगाए थे, वैसे ही यहाँ से खैमे निकालो। अल्लाह की मर्जी है कि रसूल अल्लाह का खानदान प्यासा रहे और उनकी प्यास की शिद्दत रोज़े महशर तक जमाना याद करता रहे। गाजी अब्बास की आंखें नम हुई और सादात के खैमे नहर से दूर नस्ब हो गए। फौज यजीद का ये कहना था कि ऐ हुसैन, मान लो कि यजीद सच कह रहा है, कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ऐ लोगों, अल्लाह गवाह है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह ने ज़मीन की तरफ भेजा है। मुझे मार भी दोगे तभी भी मेरे खून का कतरा कतरा रसूल अल्लाह की नबुवत की गवाही देगा। हुकूमत, दौलत और ताकत के सामने ना झुको। याद रखना, ये ताकत, हुकूमत खत्म हो जाएगी। अल्लाह का दीन ता अबद ता हयात बाकी रहेगा। लेकिन अफसोस, फौज यजीद दिन ब दिन आप पे जुल्म बढ़ाती रही कि आप यजीद की बैत करें, यहाँ तक कि आपका पानी बंद कर दिया। आप प्यासे रहे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन का खानदान 3 दिन करबला में प्यासा रहा। फौज यजीद इस कोशिश में थी कि हुसैन के खानदान को इतना सताएं, इतनी तकलीफ दें कि वो हमारी बात मान ले। इमाम हुसैन के अजीज व अकारिब को करबला में कत्ल किया गया। आपकी आंखों के सामने आपके बेटे अली अकबर को, जो हम शक्ल पैगंबर था, मारा गया। आपके भाई अब्बास को नहर किनारे सुलाया गया। आपके भाई के बेटे कासिम की लाश को पामाल किया गया। आप अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को मैदान में लेके आए और फरमाने लगे, ऐ लोगों,
तुम्हारी जंग तो इस हुसैन से है। ये 6 माह का मासूम बच्चा 3 दिन से प्यासा है और पानी न होने की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ऐ जालिमों, इस मासूम बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। फौजी यजीद जोर जोर से हंसने लगी, अपने जानवरों को पानी पिलाने लगी और बाकी पानी को जमीन पे फेंक के ये कहने लगी कि जो हमारे बादशाह की बैत नहीं करता वो हमारे नजदीक काफिर है। और यूं कह के अली असगर की तरफ तीर चला दिया। रसूल अल्लाह के इस 6 माह के चिराग को भी तीर मार के बुझाया गया। जब करबला के मैदान में कोई न रहा, इमाम हुसैन आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगो, क्या समझते हो कि इस जुल्म से तुम इस्लाम को मिटा दोगे? नहीं, इस्लाम अल्लाह का दीन है और इसका मुहाफिज अल्लाह है। अगर तुम मेरा सर भी काटोगे तो वो भी अल्लाह के दीन की सदाकत को बयान करता रहेगा। तारीख ने लिखा, हजारों की फौज अली के अकेले बेटे से लड़ती रही और यहाँ तक के वो भागते भागते मैदान छोड़ने लगी। इमाम हुसैन अली के बेटे अली की तरह मैदान में कर्रार रहे और एक एक जालिम को फिन्नार करते रहे। फौजी यजीद ने सोचा कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसको कत्ल करना नामुमकिन है, दूर जाओ और तीर चलाओ। तारीख ने लिखा, हजारों की फौज दूर से एक हुसैन पे तीर चलाती रही। कोई भाला फेंकता रहा, कोई नेजा मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इतने में आवाज गैब आई, बस हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस हुसैन। इमाम हुसैन ने रिज़्न बे क़ज़ाए व तस्लीमन ले अम्रे ही पढ़ा और अपनी जुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को इतने तीर लगे कि जब नवाज़ाए रसूल घोड़े की ज़ीर से ज़मीन पे आए तो न ज़ीन पे थे न ज़मीन पे थे, तीरों के मुसल्ले पे। इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, तेरे दीन के लिए इस हुसैन का खून कबूल हो। फौजे यजीद झूमना शुरू हो गई, खुश होना शुरू हो गई कि आज के बाद यजीद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हमने रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया। और यूं कहते कहते इमाम हुसैन का सर काटना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह की बेटियों के खेमों में आग लगा दी। रसूल अल्लाह की बेटियों के सर से चादर को छीन लिया। इमाम हुसैन की लाश को पामाल कर दिया। यजीद का ये हुक्म था कि हुसैन का सर काट के मेरे पास लेके आओ और उनकी बहनों और बेटियों को कैदी बना के मेरी दरबार पहुंचाओ। नोके नेज़ा पे नवासाए रसूल का सर सवार किया गया। रसूल अल्लाह की नवासियों और बेटियों को बेपर्दा करके रस्सियों में बांधा गया और कूफा और शाम की बाजारों में फिरा के उनको पत्थर मारे गए। लेकिन नोके नेज़ा पे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अल्लाह का जिक्र करने लगा, इस्लाम की सदाकत को बयान करने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बावाज़े बुलंद कहने लगा। लोगों ने इस्लाम की सदाकत और रसूल अल्लाह के खानदान की सीरत को देखा तो वो दंग रह गए। और जब यजीद के दरबार में कैदी सैयद इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़कर खुतबा देने लगे तो यजीद के महल में ही यजीद के लोग यजीद के खिलाफ होने लगे और यूं ये यजीद के खिलाफ बगावत जमाने में फैल गई। हर कोई हुसैन जिंदाबाद कहने लगा, यजीद मुर्दाबाद कहने लगा, इस्लाम जिंदाबाद कहने लगा, हर जालिम को मुर्दाबाद कहने लगा। आज भी अजान गूंजती है, रसूल अल्लाह का कलमा बच्चा बच्चा पढ़ के उनकी नबूवत की गवाही देता है। आज भी कुरान को मुसलमान सीने से लगा के उसको चूम के अल्लाह की किताब तस्लीम करता है। ये सब इमाम हुसैन की उस करबो बला में कुर्बानी का सिला है। सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह का दीन इस्लाम कयामत तक जिंदा कर दिया और कयामत तक कोई भी यजीद इस्लाम की सदाकत पे उंगली उठा नहीं सकता। सलाम हो नवासाए रसूल इमाम हुसैन पर। नवासाए रसूल